Hello guys, welcome to my YouTube channel Neet Experience. Hope you all are fine. Thank you guys for supporting me. For that I am becoming highly energetic. Today I will discuss 120 questions from the chapter Transport in Plants. I promise all the questions will boost your preparation for NEET 2023 to extreme level. तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो. ठीक है, on topic transport in plants. Question number 1. In guard cells, when sugar is converted into starch, the stomatal pore opens partially. Option 2 closes completely. Option 3 opens completely. Option 4 remains unchanged. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा closes completely. ठीक है, ऑप्शन 2. नेक्स्ट, diffusion is very important to plants since the cells have a permeable cell wall. It is the only means for gaseous movement within the plant body. तो ऑप्शन 2 is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट, if a pressure greater than atmospheric pressure is applied to a solution, its water potential increases. What percent of water reaching them is used by leaves in photosynthesis? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा less than 1%. ऑप्शन A is the correct answer. Next, attraction of water molecules to polar surfaces such as surface of tertiary elements is called adhesion. ठीक है, अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल एक अलग है एंड जो सरफेस है वो अलग है, यानी एडिशन का मतलब होता है अलग अलग. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4. सॉरी, मैंने 2 करेक्ट कर रखा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4, एडिशन. ठीक है, नेक्स्ट, what are the control points where a plant adjusts the quantity and types of solutes that reach the xylem? Cellulose deposited Casparian stripes, transport proteins of endodermal cell, sclerenchyma around the pericycle, the root hairs themselves. तो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स. नेक्स्ट, ड्यूरिंग translocation of sugars in plants from source to sink. Option A, the loading of sugar at the source is by active transport and unloading at the sink by passive transport. तो ये हो गया रॉन्ग. अनलोडिंग एंड लोडिंग दोनों ही क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, ऑप्शन 2, द लोडिंग ऑफ शुगर एट द सोर्स इज बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये भी हो गया रॉन्ग. ऑप्शन 3, बोथ लोडिंग एट द सोर्स एंड अनलोडिंग एट द सिंक आर बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बोथ क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट, वाटर लॉगिंग और ओवर वाटरिंग अ प्लांट इज डेंजरस एंड मे किल द प्लांट. व्हाई इज दिस सो? ऑप्शन नंबर 1, वाटर डज नॉट हैव ऑल द नेसेसरी मिनरल्स अ प्लांट नीड्स टू ग्रो. ऑप्शन 2, water neutralizes the pH of the soil. Option 3, the roots are deprived of oxygen. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, the roots are deprived of oxygen. ठीक है, which of the following is are essential for imbibitions to take place? तो ऑप्शन 1, water potential gradient between the absorbent and the liquid imbibed, ये तो है ट्रू, ये रिक्वायर्ड है. देन आएगा affinity between the absorbent and the liquid, ये भी है ट्रू, यानी 1 and 2 बोथ रिक्वायर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, व्हाट इज ट्रू फॉर बोथ सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स? ऑप्शन नंबर 1, एन इक्वल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, being down of potential gradient, assistance by cytoplasmic streaming, conduction through interconnected chloroplasts. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा being down of potential gradient. जो सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट होते हैं दोनों ही क्या होता है, being down of potential gradient. ठीक है, along the potential gradient. नेक्स्ट, phenyl mercuric acetate PMA results in reduced transpiration. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Pressure on a plant cell wall caused osmotic movement of water is called osmotic pressure, osmotic potential, turgor pressure, hypertonic pressure. तो सेल वॉल प्रेशर ऑन द प्लांट सेल वॉल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टारगर प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट,
The most abundant solute in the phloem sap is sucrose. Option 2. A plant requires potassium for holding its cell together, synthesizing chlorophyll, DNA replication, opening and closing of stomata. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 4. The water potential of pure water is 0, less than 0, more than 0, but less than 1, more than 1. Water potential of pure water आएगा क्या? 0. Easy question, common question. A few drops of sap were collected by cutting across a plant stem by suitable method. The sap was tested chemically. Which one of the following test results indicates that it is phloem sap? जो phloem sap है वो होता है alkaline. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा alkaline. Option 2. Root pressure develops due to active absorption, low osmotic potential in soil, passive absorption, increase in transpiration. जो root pressure develops होता है due to active absorption. ठीक है, next. Transpiration and root pressure causes water to rise in plants by, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है पुलिंग, एंड जो रूट प्रेशर होता है वो होता है पुशिंग. ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और रूट प्रेशर होता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2. ठीक है, नेक्स्ट. A column of water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of tensile strength of the water. Option 2 is the correct answer. In a ring girdle plant, the shoot dies fast, the root dies part. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा the root dies fast. ठीक है, in case of girdling experiment. NCERT में लास्ट में दिया हुआ है, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के लास्ट में. which one gives the most valid and recent explanation for stomatal movements? तो जो मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट्स है वो होता है पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Which of the following criteria does not pertain to facilitate transport? Requirement of special membrane proteins, highly selectivity, transport saturation, uphill transport. तो क्या पूछा है? Which one of the following criteria does not pertain facilitate transport? तो facilitate transport uphill transport नहीं है. ठीक है, ये है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट. तो ये होगा रॉन्ग, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. डज नॉट पूछा है, डज नॉट. ठीक है, नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट्स इज नॉट रिमोबिलाइज्ड? जो नॉट रिमोबिलाइज्ड होता है वो होता है कैल्शियम. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट. द रप्चर एंड फ्रैक्शनल डू नॉट usually occur in the water column in vessel or tracheids during the ascent of sap because of lignified thick walls, no cohesion and adhesion, weak gravitational pull, transpiration pull. जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा cohesion and adhesion. ठीक है, इसके वजह से ही not break the column. Substances that enter living cell by facilitated diffusion are generally polar in nature, transported in the direction of concentration gradient. ये तो है ट्रू. concentration gradient, transported with the help of carrier proteins, ये भी है true. generally polar in nature, ये भी है true. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4, यानी ऑल ऑफ दिस. ठीक है, नेक्स्ट. क्या है? wooden doors swell up and get stuck during the rainy season. This is due to the imbibition. Option 1. In plants, water moves from लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल. हाँ, यही तो ट्रू है. लेस नेगेटिव यानी हाई वाटर पोटेंशियल एंड मोर नेगेटिव यानी लेस वाटर पोटेंशियल. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1. स्टोमाटा ओपन्स इन डे टाइम फॉर गैसियस एक्सचेंज, इन डे टाइम नो गैसियस एक्सचेंज. तो इसका ए हो गया रॉन्ग, ए हो गया ट्रू. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. डे में ही ओपन होता है. स्टोमाटा ओपन्स व्हेन इन डेज. ठीक है, इन केस ऑफ C4 प्लांट्स देन आंसर शुड बी इन नाइट. नेक्स्ट. इफ टारगेट प्रेशर becomes equal to the wall pressure, then water leaves the cell, no. Water enters the cells, no. No exchange of water takes place. हाँ, ऑप्शन C is the correct answer. आइसोटोनिक, इन केस ऑफ आइसोटोनिक. ठीक है. Which of the following helps in ascent of sap?
रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, कैपिलरिटी, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस across the membrane in facilitated diffusion? It is an active transport. Not, it is not an active transport. क्या पूछा है? Which is correct? It causes transport of molecules from low concentration to high concentration. ये भी wrong. High to low होगा, ठीक है. It is insensitive to inhibitors. Wrong. It is sensitive to inhibitors. Then क्या है? It is very specific transport. हाँ, ये है true. It is very specific transport होता है. जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है. द वाटर लॉगिंग कैपेसिटी ऑफ गार्डन सोइल विल बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वेट ऑफ सोइल बाय एडिंग वाटर ह्यूमस. नो. वाटर सैचुरेटेड सोइल, देन हीटिंग द सोइल टिल इट इज ड्राई एंड देन मेजरिंग द वेट ऑफ द सोइल. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, ठीक है. 2 इज द करेक्ट आंसर. The modified equation for water potential is psi W is equal to psi S plus psi P. Solid potential plus pressure potential. तो option 1 is the correct answer. बहुत easy question है. Osmosis is a type of imbibition of solution, diffusion of solvent. तो इसका आंसर आएगा diffusion of solvent. Osmosis is a type of diffusion of solvent. ठीक है. Next, the value of osmotic potential of an electrolyte is always more than non-electrolyte, less than non-electrolyte, same as non-electrolyte. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा more than non-electrolyte. The value of osmotic potential is always more than non-electrolyte, ठीक है, in case of electrolyte. Next, which of the following statement is correct? तो जो डीपीडी होता है, डीपीडी क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगर प्रेशर, और टारगर प्रेशर का दूसरा नाम होता है वॉल प्रेशर, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. ऑस्मोटिक डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर. हु हैड प्रोपोज्ड थ्योरी ऑफ कोहेशन एंड एडेशन फोर्सेस? तो इसका आंसर आएगा वो आएगा डिक्सन एंड जॉली इन 1894. नेक्स्ट, स्टोमाटल ओपनिंग इज एफेक्टेड बाई नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड लाइट. No. Carbon dioxide concentration, temperature and light. Nitrogen concentration, light and temperature. Carbon dioxide concentration, nitrogen concentration and temperature. तो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2, ठीक है. नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन नॉट इफेक्ट स्टोमेटल ओपनिंग, ओनली इफेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड लाइट, ठीक है. नेक्स्ट, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड एंड प्रोडक्ट्स इन सिव ट्यूब्स इज. इसका आंसर आएगा 60 to 100 सेंटीमीटर पर आवर. द रेशियो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर exerted by 1 molar sucrose and 1 molar NaCl solution will be. तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इन केस ऑफ NaCl वो होगा डबल, ठीक है. तो 1/2 यानी 0.5 इज द करेक्ट आंसर. इन केस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट. तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज मोर. इन केस ऑफ NaCl देयर इज Na प्लस एंड Cl माइनस. सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आएगा वो आएगा सुक्रोज से द्विगुना आएगा, ठीक है, डबल आएगा. तो क्या पूछा है? रेशियो पूछा है इन केस ऑफ सुक्रोज बाई इन केस ऑफ NaCl. तो इन केस ऑफ सुक्रोज अगर हम 1 माने तो इन केस ऑफ NaCl क्या आएगा? 2 आएगा. तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है. अच्छा क्वेश्चन. नेक्स्ट, केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सॉल्यूशन चैप्टर में. ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, एब्सेंस ऑफ CO2. तो ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट, Cell A has osmotic potential of -18 bars and pressure potential of 8 bars, whereas Cell B has osmotic potential of -14 bars and the pressure potential 2 bars. The direction of flow of water will be. So direction of flow of water will be higher water potential to lower water potential. So in case of A, -18 plus 8 equal to -10, and in case of B, -14 plus 2 is equal to -12. तो -10 इज ग्रेटर देन -12. सो A to B यानी फ्रॉम सेल A to सेल B, ठीक है. नेक्स्ट, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू
active absorption. Option 1 is the correct answer. Next, which of the following is correct about transport or conduction of substances? तो क्या है ऑप्शन ए में क्या है ऑर्गेनिक फूड मूव्स अपवर्ड थ्रू जाइलम, ऑर्गेनिक फूड मूव अप थ्रू फ्लोएम, इनऑर्गेनिक फूड मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रू जाइलम। तो इनके सब जाइलम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं होता है, ठीक है, तो ये हो गया रॉन्ग। ऑर्गेनिक फूड मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रू फ्लोएम, तो ये आएगा ट्रू आंसर, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड मूव्स अपवर्ड थ्रू जाइलम एंड ऑर्गेनिक फूड मूव्स अपवर्ड थ्रू फ्लोएम, ये दोनों ही क्या हो गए रॉन्ग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज एसेंशियली डैश फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स, तो ये आएगा यूनिडिरेक्शनल, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, तो ए में आएगा यूनिडिरेक्शनल एंड बी में आएगा मल्टी डायरेक्शनल। तो ऑप्शन ए में क्या है, ए में है मल्टी डायरेक्शनल, तो ये हो गया रॉन्ग। ए में आएगा यूनिडिरेक्शनल। तो ऑप्शन 2 में क्या है, ए में है बाई डायरेक्शनल, ये भी है रॉन्ग। ऑप्शन 3 में क्या है, बी है मल्टी डायरेक्शनल, यानी बी इज़ द ट्रू आंसर, सी इज़ द ट्रू आंसर, ठीक है। 3 नंबर क्या है, सही है। ऑप्शन 4 में क्या है, बी जो है यूनिडायरेक्शनल कहा है, नहीं बी होगा मल्टी डायरेक्शनल, ये भी है रॉन्ग, यानी ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, अच्छे से देख लो। नेक्स्ट, डिफ्यूजन, फाइंड द रॉन्ग ऑप्शन अबाउट डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इज पैसिव, ये तो है ट्रू। देन ओवर शॉर्टेड डिस्टेंस, ये भी है ट्रू। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये भी है ट्रू। मूवमेंट इन ऑर्डर्ड फैशन, ये हो गया रॉन्ग, ठीक है, तो रॉन्ग ही पूछा था, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर टू अफेक्ट डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन? ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैस कांस्टेंट, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गैस कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस across a membrane depends on solubility in proteins, solubility in carbohydrates, solubility in lipids, solubility in glycolipids, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यानी solubility in lipids। the diffusion of any substance, ठीक है, the diffusion of any substance across a membrane depends on solubility in lipids। substances which are soluble in lipids dash but which have hydrophilic moiety dash, तो move fast, सब्सटेंसेस व्हिच आर सोल्यूबल इन लिपिड मूव फास्ट, ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए में आएगा मूव फास्ट, या ये क्या है मूव स्लोली, ये हो गया रॉन्ग। देन आएगा मूव सिमिलरली एज दैट ऑफ अदर्स, ये भी है रॉन्ग। ऑप्शन बी में आएगा मूव स्लोअर, ये भी है रॉन्ग। ऑप्शन ए में क्या आएगा मूव फास्टर, ये हो गया राइट, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच आर सोल्यूबल इन लिपिड्स मूव्स फास्टेस्ट एंड व्हिच हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी मूव्स स्लोअर, ठीक है। नेक्स्ट, porins are not present in the outer membrane of plastid, present, यहाँ पर तो प्रेजेंट होता है, outer membrane of mitochondria, outer membrane of bacteria, inner membrane of plastids, inner membrane में एबसेंट होता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4। क्या पूछा है, नॉट प्रेजेंट पूछा है, यानी एबसेंट पूछा है, तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट, which of the following is not sensitive to inhibitors? pump, diffusion, facilitate diffusion, पोर्शंस, तो इसका आंसर आएगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन? सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन व्हाइल अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1, ठीक है। ऑल चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, ये हो गया रॉन्ग। ऑल चैनल्स नॉट ऑलवेज ओपन, सम चैनल्स आर क्लोज्ड व्हाइल अदर्स आर ऑलवेज ओपन, सम चैनल्स आर क्लोज्ड, क्लोज नहीं होता है, कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। एप्रोप्रिएट आंसर आएगा ऑप्शन 1। नो रेगुलेशन ऑफ चैनल्स एज सच, ये तो ढाला रॉन्ग हो गया भाई। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सच मूवमेंट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 8 different types of aquaporins. Molecules move across a membrane independent of other molecules by the means of membrane protein. The process is called uniport. Active transport. Which of the following is wrong? Uses energy to transport. ये तो है true. Uses energy to pump molecules against a concentration gradient. ये भी है true.
carried out by specific membrane proteins, ये भी true. Substances are transported from high concentration to low concentrations, ये होगा wrong. Low concentration to high concentration होगा, यानी against concentration gradient which is active transport. ठीक है. Membrane proteins are for uphill transport, downhill transport, uphill as well as downhill transport only. Yani option C is the correct answer. In case of facilitated diffusion, that is downhill transport, and in case of active transport, that is uphill transport. So as well as downhill and uphill. Transport proteins are specific, sensitive to inhibitors, so saturation, all of this. Yani all of this. Which of the following is not a common characteristic between active transport and facilitated transport? तो यूज ऑफ एनर्जी, यही तो आंसर आएगा. यूज ऑफ एनर्जी, इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी का यूज होता है, लेकिन इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, सो दैट इज नॉट कॉमन बिटवीन दैम. ठीक है. हाईली सिलेक्टिव, ये तो कॉमन है. लायबल टू सैचुरेट, ये भी कॉमन है. अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, ये भी किया है, कॉमन है. ठीक है. नेक्स्ट, वाटर. व्हिच वन इज रॉन्ग फॉर वाटर? ऑप्शन नंबर 1 provides a medium in which different substances are dissolved, ये तो है ट्रू. मेक्स 92% पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, ये तो है ट्रू. एनसीईआरटी में दिया हुआ है. मेक्स 30 to 45% पार्ट ऑफ मोस्ट हार्बेसियस प्लांट, तो ये होगा रॉन्ग. ठीक है. यहाँ पर आएगा 70 to 90, कितना आएगा 70 to 90, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन. लॉस ऑफ वाटर इन सॉइल, लॉस ऑफ मिनरल्स इन सॉइल. ट्रांसपिरेशन होता क्या है? लॉस ऑफ वाटर टू द एयर फ्रॉम द लीव्स, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3. ठीक है. ए मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इन डे, व्हाइल अ मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 3 hours और 5 hours. तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा 3 liter and 5 hours. ए मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स 3 liter ऑफ वाटर in a day while a mustard plant absorbs water equal to its own weight in about 5 hours. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है, डाटाबेस क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन आ रहा है 2022 में, ऐसा क्वेश्चन आए थे. ठीक है. नेक्स्ट, वाटर इज ऑफन अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. वाटर मूव्स स्लो, water molecules show a motion, random, rapid, constant, all of this. The greater water potential actually does not suggest that greater concentration of water, ये तो है true, suggest करता है. Greater kinetic energy, true. Less solute concentration, yes, less when there is solid concentration less, then water potential is high. Lower solid potential, ये है wrong. ठीक है. Next, water moves down a gradient ऑफ सॉल्यूट्स डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी, नॉट सॉल्यूट्स. ठीक है. बिकॉज वाटर मूव्स अलोंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है. तो वाटर पोटेंशियल मीन्स एक तरह का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सो डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी. ठीक है. समझ आया. नेक्स्ट, फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉलिड पोटेंशियल इज मोर देन वाटर पोटेंशियल. फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पूछा है. वाटर पोटेंशियल मोर देन सॉलिड पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल इज लेस देन वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर द प्रेशर पोटेंशियल इज 0, सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल अगर 0 होगा तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल. ठीक है. नेक्स्ट, cell wall is freely permeable. Next, in case of cell membrane, then there is semi permeable or selectively permeable, but in case of cell wall that is freely permeable. Sorry. In plant cell, which of the following is important determinants of movement of molecules in or out of the cell? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट, यानी बोथ ऑप्शन 4. ठीक है. बोथ 2 and 3. नेक्स्ट, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तो है ट्रू. डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी है ट्रू. डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेल वाली, ये तो है रॉन्ग. ठीक है. ऑस्मोसिस इन केस ऑफ 1 and 2, यानी बोथ ऑप्शन 4. नेक्स्ट,
ऑस्मोटिक प्रेशर is a function of osmotic potential, solid potential, solvent potential, water potential। जो osmotic pressure है is a function of solid potential, ठीक है। जो solid potential है वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ osmotic pressure है, ठीक है। और osmotic pressure इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन और सॉलिड पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, न्यूमेरिकली osmotic pressure is equal to the osmotic potential, yes, and सॉलिड पोटेंशियल, यस, यानी बोथ ए एंड बी बट साइन इज अपोजिट। हाँ, जो मैंने पहले ही कहा था, जो नेगेटिव साइन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस, विच वन इज इनकरेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट पूछा है इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, ऑप्शन 1 एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, ये तो है ट्रू, ठीक है। देन आएगा वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, ये भी है ट्रू। सेल मेम्ब्रेन श्रिंक्स ये हुए फॉर्म इट्स सेल वॉल, ये तो है ट्रू, ये भी है ट्रू, ठीक है। ऑप्शन 4 में क्या है, फर्स्टली सेल शेप कम्स आउट देन साइटोप्लाज्मिक वाटर, नो ये हो गया रॉन्ग। इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस फर्स्टली द साइटोप्लाज्मिक वाटर कम्स आउट देन द सेल शेप, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना होगा, सिली मिस्टेक। व्हाट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइट सेल, तो यहाँ पर आएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Next, when the cells are placed in a hypotonic solution, water movement causes target pressure, ठीक है। Next, target pressure causes rupture of animal cells, ये तो true। Responsible for enlargement and extension of the plant cells, ये भी है true। Due to target pressure, responsible for enlargement and extension of plant cell, pressure against the wall, ये भी है true, यानी all of this is true। Next, prehistoric man used which of the following methods to split rocks and boulders, ऑप्शन आएगा imbibition, ठीक है। नेक्स्ट, इमरजेंसी ऑफ सीडलिंग इज ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, imbibition, तो आंसर आएगा imbibition। इन केस ऑफ सीडलिंग देयर इज imbibition helped। फ्रॉम द twig experiment in which twig is placed in colored water, which of the following can be deduced the path of organic acid, no। in case of twig he experiment about the water, ठीक है, the path of water, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, the path of water। movement of molecule across a typical plant cell exact 50 माइक्रोमीटर takes, तो इसका जो स्पीड होता है वो होता है 20 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, 20 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट, मास फ्लो और बल्क फ्लो सिस्टम इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और इन मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस मास फ्लो और बल्क फ्लो हैपेंस। मास फ्लो, सॉलिड्स मूव स्लोली, लिक्विड मूव फास्टर, ऑल मूव्स थ्रू द सेम पेस, तो ऑल मूव्स थ्रू द सेम पेस, ये आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ मास फ्लो ऑल फ्लोज थ्रू द सेम पेस, ठीक है। नेक्स्ट, यानी सेम स्पीड्स। बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड बाय पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बोथ ए एंड बी, तो जो बल्क फ्लो है वो पॉजिटिव एंड हाइड्रोटिक बोथ ए एंड बी के वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ मास फ्लो इज ऑकरिंग like a garden hose, then it is due to positive hydrostatic pressure, यानी ऑप्शन 1 is the correct answer। in case of garden hose positive hydrostatic pressure। plastic system, find the wrong one। system of interconnected protoplasts involves path through plasmodesmata, water has to enter the cells through the cell membrane above a potential gradient movement, तो जो है सिंपलेस्ट क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग एंड रॉन्ग पूछा है, ठीक है। दोनों ही सिंपलेस्ट एंड एपोप्लस दोनों ही क्या होता है, along द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट, यानी हाई ग्रेडियंट टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहाँ पर क्या दिया है, एबोव पोटेंशियल ग्रेडियंट मूवमेंट, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल दिया हुआ है, ये रॉन्ग है, ठीक है। इफ मास फ्लो इज ऑकरिंग लाइक सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ, हाँ यहाँ पर आएगा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ ड्यू टू नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सॉरी।
नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज स्लोअर देन एपोप्लास्टिक मूवमेंट because it involves cytoplasmic streaming always. Molecules has to enter through the cell membrane because it is down the gradient, all of this। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा molecules has to enter through the cell membrane। इसलिए जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है वो क्या होता है, स्लोअर होता है देन द एपोप्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कैस्पेरियन स्ट्राइप makes endodermis impervious, inner layer of cortex impervious, outer layer pervious, more than one option is correct। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1 and 2, यानी मोर ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ वाटर इन जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स इज सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, बोथ ए एंड बी एंड डिपेंड्स ऑन ग्रेडियंट। तो जो वाटर का पाथ है इन केस ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स वो होता है, क्या होता है, एपोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पाइनस हैज ए एसोसिएशन विथ माइकोराइजा एंड दे आर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा, यानी पाइनस हैज एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा एंड देयर सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Water loss in liquid phase from the tip of the grass blades and leaves of herbaceous plants is called guttation. Root pressure is one type of positive hydrostatic pressure, यानी pushing pressure, ठीक है। पॉजिटिव यानी पुशिंग, नेगेटिव यानी पुलिंग। नेक्स्ट, which of the following is an expected rate of upward flow of plants flow in plants due to transpiratory pool। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अप टू 50 मीटर्स पर मिनट। अप टू 15 मीटर्स पर आवर आएगा, सॉरी नॉट इन मिनट्स यार, अप टू 15 मीटर्स पर आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडल फॉर ट्रांसपिरेशन। तो ये सिली मिस्टेक क्वेश्चन है, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रांसपिरेशन मॉडल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2, कोहेशन एंड टेंशन ट्रांसपिरेशन पूल मॉडल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो उसमें कोहेशन एंड एडहेशन को मार्क कर देता है, तो ये क्या होगा, ये होगा रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर आएगा कोहेशन एंड टेंशन ट्रांसपिरेशन पूल मॉडल, नॉट कोहेशन एंड एडहेशन ट्रांसपिरेशन पूल मॉडल। टेंशन आना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन कैन बी स्टडीड बाय कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट, ये तो है ट्रू। क्रोमियम क्लोराइड पेपर टेस्ट, ये है रॉन्ग। लीफ इनक्लोज्ड इन पॉलीबैग, ये है ट्रू, यानी बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। द इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज अ चेंज इन द टार्जिटी ऑफ द सब्सिडियरी सेल्स, नो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एपर्चर, नो। चेंज इन द टार्जिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज नॉट पूछा है, अच्छे से देखो, इज नॉट, ठीक है, सिली मिस्टेक। तो जो इनर वॉल होता है वो होता है थिक एंड इलास्टिक होता है, ठीक है, तो नॉट थिन, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ओपनिंग ऑफ स्टोमा इज ऑल्सो सपोर्टेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। जो माइक्रोफाइब्रिल होते हैं वो फाउंड इन सेल वॉल, नॉट इन द गार्ड सेल, नॉट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। गार्ड सेल में, सेल वॉल में पाया जाता है क्या, माइक्रोफाइब्रिल का ओरिएंटेशन। तो माइक्रोफाइब्रिल ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमा आर नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो गार्ड सेल्स का माइक्रोफाइब्रिल है वो तो सेलुलोज की मेड अप होते हैं, तो ये तो ट्रू। क्या पूछा है, आर नॉट पूछा है, ठीक है। ओरिएंटेड रेडियली, ये भी है ट्रू। मेक्स इट मोर इजी फॉर स्टोमा टू ओपन, ये भी है ट्रू। फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये हो गया रॉन्ग, ठीक है, ये हो गया रॉन्ग, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो फाउंड इन सेल वॉल, नॉट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखना पड़ेगा वो क्वेश्चन। व्हेन गार्ड सेल्स लूज टार्गर ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, द इलास्टिक इनर वॉल regain its shape and guard cells become flaccid, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन इज एफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, फाइंड द रॉन्ग वन।
तो जो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से की वजह से इफेक्टेड होता है? लाइट एंड टेम्परेचर तो है ट्रू, ह्यूमिडिटी है ट्रू, विंड स्पीड है ट्रू, कैनोनिक स्ट्रक्चर ये तो है इंटरनल, ठीक है, तो ये हो गया रॉन्ग, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल फैक्टर्स पूछा था, नॉट इंटरनल फैक्टर्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज म्यूचुअली एट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होता है? वो होता है एन एबिलिटी टू रेसिस्ट अ पुलिंग फोर्स, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 4 आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फोर्सेस विच आर जनरेटेड इन जाइलम बाय ट्रांसपिरेशन पूल कैन कॉज लिफ्टिंग ऑफ वाटर अप टू 130 meters. Evaporation from the leaf at the first sets of a pressure gradient between the outside air and cytoplasm of the cells of the leaf, outside air and air space of the leaf, outside air and xylem cells of the leaf, outside air and palisade cells of the leaf. तो evaporation from the leaf वो क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? आउटसाइड एयर एंड द स्पेस ऑफ द लीफ, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है। ट्रांसपिरेशन कैन कूल द लीफ सरफेस अप टू 10 to 15 degrees, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। द इवोल्यूशन ऑफ C4 plants is probably one of the strategies to minimize water loss, maximize oxygen availability, ये तो है wrong, maximize carbon dioxide availability, maximize evolution of C4 plants is probably one of the strategies to maximize, नहीं minimize आएगा, ठीक है, तो minimize water loss, यानी ऑप्शन C is only correct. Next, water loss. C4 plants are as efficient as C3 plants in terms of making sugar and lose only dash of the water in comparison. Oh अच्छा, वहाँ पर dash था। C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of making sugar and lose only half of the water in comparison, यानी ऑप्शन 2 is the correct answer, twice and half, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है गाइज। Most of the minerals are absorbed through the active transport because minerals are charged particles, ये तो है true, minerals charged particles होते हैं। Minerals are insoluble in lipid bilayer, ये तो है true। The amount of mineral is less in the soil, ये भी है true, यानी all of this is true, ठीक है। What is the chief sink of mineral elements in plants? Growing regions of the plant, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चीप सिंक पूछा है, चीप सिंक, तो चीप सिंक कौन होता है? ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स्ड डिपेंडिंग ऑन द सीजन, हाँ, सीजन के ऊपर डिपेंड करके वो चेंज हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स नीड्स, ये भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द फ्लेम टाइप, नॉट, फ्लेम टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। बोथ ए एंड बी आएगा आंसर, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। फ्लेम सेप इज मेनली वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड सुक्रोज, तो जो फ्लेम सेप है वो मेनली वाटर एंड सुक्रोज, ठीक है। Which of the following is an accepted mechanism for translocation of sugars from source to sink? Cohesion flow hypothesis, pressure flow hypothesis, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा pressure flow hypothesis. Sorry guys. Gardening experiment suggests that xylem is for water and mineral transport, not. गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट करता है? तो एक तो होगा रॉन्ग। ऑप्शन 2 में क्या है? फ्लोएम इज फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये ट्रू। ऑप्शन 3 में क्या है? ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल एज वेल, ये सजेस्ट नहीं करता है, ठीक है। द पोर्शन बिलो द रिंग बिकम्स फ्लोएम ड्यू टू वाटर, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 क्या आएगा? करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ लोडिंग ऑफ फ्लोएम which of the following happens? तो at the time of loading of the flame, ठीक है, क्या होता है? हाई टारगेट प्रेशर होते हैं, फ्लैसिड फ्लोएम होता है, प्लाज्मोलाइट फ्लोएम होता है, लो वाटर पोटेंशियल होता है, तो इस वजह से क्या होता है? हाई टारगेट प्रेशर होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट शुगर मूव्स टू कैस्पेरियन सेल्स। द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस when the root pressure is high and the rate of transpiration is low, यानी ऑप्शन 1 is the correct answer, ठीक है। When a plant undergoes senescence, the nutrients may be translocated, option 3. Casparian bands are found in
एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पेरिडम, कॉर्टेक्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंडोडर्मिस। फंक्शन ऑफ क्या कॉम्पेनियन सेल्स इज लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू द सिप एलिमेंट्स, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। लगभग क्या 120 क्वेश्चंस है, ठीक है। 120 क्वेश्चंस जो एनफ है हर किसी टेस्ट के लिए और नीट 2023 के लिए भी। सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया है इस चैप्टर से। एक भी क्वेश्चंस आपको बाहर से नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस NCERT से है, ठीक है। आप अच्छे से रिवाइज कर लो एंड मचाते रहो गाइस। नेक्स्ट वीडियो ऑन मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। ओके, तब तक के लिए ओके बाय गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। कुछ चलते हैं।